وہ دیوتاؤں کی چہیتی تھی، پر اسرار سرگوشیاں اس کی رہنما تھیں، اس کی آنکھوں میں موت کی کڑکتی بجلیاں پوشیدہ تھی، وہ انتقام کی آگ میں جل رہی تھی، اس کے ہاتھ میں زندگی کی لکیر تھی اور نہ موت کی، وہ سانپ سے بھی زیادہ زہریلی تھی، اپنے دشمن کی کٹی ہوئی گردن دیکھنا چاہتی تھی، پر اسرار اور شیطانی قوتیں اس کی راہ میں حائل تھیں، پر اسرار قوتوں کی مالک ایک دو شیدہ کی ہنگاموں بری داستان عجیب دید بان۔ تو تم مجھے سوچنے کا وقت نہیں دینا چاہتی؟ اس میں سوچنے کی کیا بات ہے؟ ادھر یا ادھر، دوستی یا دشمنی، اور تمہیں دونوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا پڑے گا، بولو کیا کہتی ہو؟ اور میرے لیے اب صرف ایک ہی راستہ رہ گیا تھا، اور میں نے فوری طور پر اسی پر عمل کیا، اور میں نے ایک دم اس پر چھلانگ لگا دی، اور وہ بھی ایک ہی عیار عورت تھی۔ ذہنی طور پر یقیناً وہ کسی ایسے خطرناک صورتحال کے لیے پہلے سے تیار تھی، اور یہی وجہ تھی کہ وہ اچھل کر انتہائی سرعت کے ساتھ ایک طرف ہو گئی، اور میں منہ کے بل چارپائی پر گری، اور جب تک میں اٹھی تو وہ کھڑی ہو چکی تھی، اور مجھے اس کے ہاتھ میں خطرناک کھلونا نظر آیا۔ اچھا ہوا معاملہ کہ تم نے خود ہی مجھ پر حملے میں پہر کر کے انتقام کی راہ ہموار کر دی، اور اس کی سرد آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ اگر میں تمہیں گولی مار دوں تو یہ نا انصافی نہیں ہوگی۔ تم بہرحال میرے ایک نوجوان ساتھی جہانگیر کو قتل کر چکی ہو، ٹھیک ہے نا؟ اور میں اگر تمہیں قتل کر دوں تو حساب برابر ہو جائے گا۔ اور اسی وقت میری دائیں ٹانگ دائرے کی صورت میں گھوم گئی، اور ریوالور اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر گیا، اور پھر جیسے ہی میں اڑتی ہوئی اس تک پہنچ گئی اور اسے سنبھلنے کا موقع نہیں دیا، میرے ہی ساتھ وہ بھی زمین پر گر پڑی، اور وہ نیچے تھی اور میں اوپر، اور میرے دائیں گھٹنے کی ضرب اس کی کمپٹی پر پڑی، اور اسی کے ساتھ اس کے دونوں ہاتھ جو میری گردن کی طرف بڑھ رہے تھے ادھر ادھر گر پڑے، اور میں تیزی سے اٹھی، اور اس کے کمرے سے نکلنے اور باہر سے کنڈی لگانے میں نے دیر نہیں کی، اور اگلے چند منٹ کے اندر اندر میں ہوٹل چھوڑ چکی تھی، اور اب میں ہوٹل سے نکل کر تیز قدمی کے ساتھ شہزاد کے گھر چتلی قبر جا رہی تھی، اور دروازہ شہزاد نے ہی کھولا، اور میں اس کے چہرے پر شدید حیرت کے آثار دیکھے، اور اندر قدم رکھتے ہوئے پوچھا، کیا ہوا؟ تجھے مجھے دیکھ کر اتنے حیران پریشان کیوں نظر آ رہے ہو؟ ابھی ذرا ہی دیر پہلے چچا حمید کا بیٹا مجھ سے مل کر گیا ہے، وہ تمہیں بڑی دلچسپ کہانی سنا کر گیا ہوگا۔ میں اس کی بات کاٹ کر آہستہ سے ہنسی، اور میں اندر پہنچ کر سنبل سے ملی، جو صحن ہی میں نل کے پیچھے بیٹھی برتن دھو رہی تھی، اور سوٹ کیس مجھ سے شہزاد نے گھر میں داخل ہوتے ہی لے لیا، اور اب تو تمہیں کوئی شکایت نہیں، اور صبح شام ملاقات ہو رہی ہے۔ اور میں سنبھل کر بولی، اور اسی خوشی میں ناشتہ بنا دو میرے لیے، بس یہ 2-3 برتن دھونے کو رہ گئے ہیں، ابھی بناتی ہوں، اور آپ کے لیے۔ وہ مسکرائی، اور پھر میں شہزاد کی ماں کو سلام کر کے نشست گاہ کی طرف بڑھ گئی، اور شہزاد وہیں میرا منتظر تھا۔ نشست گاہ میں داخل ہوتے ہی میں نے شہزاد کو مخاطب کیا، ہاں اب بتاؤ کہ اس خبیث بیٹے نے تم سے کیا کہا؟ اور پہلے تو آپ بتائیے خاتون کہ آپ نے رات کہاں گزاری؟ آپ چچا حمید کے مکان میں تو نہیں؟ کیا پہاڑ گنج چلی گئی تھی؟ شہزاد نے دریافت کیا۔ تم بھی کمال کرتے ہو، اگر وہاں چلی گئی ہوتی تو سوٹ کیس کیوں لیے پھرتی؟ اور یہ چھوڑو کہ میں کہاں تھی، وہ بتاؤ، میں نے تم سے پوچھا ہے۔ مجید کہہ رہا تھا کہ رات آپ نے اس کے باپ کو شدید زخمی کر دیا اور پھر فرار ہو گئی، یہ نہیں بتایا کہ اس نے مجھے شابو کے حوالے کر دیا تھا؟ کیا؟ شہزاد حیرت سے بولا، یہ شابو وہاں کیسے پہنچ گیا؟ اور پھر مختصراً میں نے شہزاد کو رات والا واقعہ بتا دیا، اور پھر یہ بھی کہ رات کہاں گزاری، اور اس واقعے کا پس منظر کیا تھا، یا اس کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا۔ ظاہر ہے کہ یہ میں شہزاد کو نہیں بتا سکتی تھی، اور اس نے اسی لیے سارا قصور حمید ہی کا سمجھا، اور اسے برا بلا کہنے لگا۔ جہنم میں جھونکو اس بوڑھے کو، تم ایسا کرنا کہ کسی وقت وہاں سے فرنیچر اٹھا کر اپنے گھر لے آنا، کام آ جائے گا۔ تو ظاہر ہے میں فرنیچر تو وہاں نہیں چھوڑ سکتا، اور میں اسی لیے تم سے کہہ رہی تھی کہ کوئی ایسا مکان دیکھنا جہاں اور کوئی نہ رہتا ہو۔ بہرحال کوشش جاری رکھو، ممکن ہے کوئی الگ تھلگ مکان کرائے پر مل جائے۔ بہتر ہے خاتون، شہزاد نے جواب دیا، اور پھر ناشتہ کرنے کے بعد میں شہزاد کے گھر سے روانہ ہو گئی۔ اسی علاقے میں کیونکہ رانی بھی موجود تھی، اس لیے میں جلد از جلد وہاں سے نکل جانا چاہتی تھی۔ بازار مٹیا محل سے گزرتے ہوئے ایک خالی تانگا مل گیا، اور میں اسے پہاڑ گنج کے لیے بیٹھ گئی، اور شہزاد کو میں نے آئندہ روز کے آنے کے لیے کہہ دیا تھا، اور وہ واپس چلا گیا۔ اور پھر سفر اس سوچو بچار میں کٹ گیا، اور میں پہاڑ گنج پہنچ گئی۔
तांगे को मैंने मेन रोड पर ही छोड़ दिया और किराया अदा करके उतर गई। मैं घर पहुंची तो दुलारी ने मुझे पैगाम दिया कि तंजीम की इमारत में आदल मेरा मुंतज़िर है, और सूटकेस अपने कमरे में रखकर मैं बाहर आ रही थी तो मुझे सलीम का ख्याल आ गया और मैं गुज़श्ता रोज़ शाम को उसी बेहोशी की हालत में दुलारी के पास छोड़ गई थी। और मेरा ख्याल था कि होश में आने के बाद सलीम ने दुलारी से मेरे मुतल्लक जहर अफशानी की होगी, और उसी ख्याल से बाहर आकर मैंने दुलारी को बुलाया जो किचन में थी, और वो आ गई तो मैंने उससे पूछा, सलीम तो खैरियत से है? कितनी देर बाद उसे होश आ गया था। जी हाँ मामरा जी, वो ठीक है, दुलारी ने जवाब दिया और फिर कहने लगी। होश में आने के बाद मुझसे पूछने लगा कि यहाँ कब और कैसे आ गया, और हैरत की बात यह है कि आपसे के सामने वो बातें कर रहा था और उनमें से कोई बात उसे याद नहीं थी, और उसे तो ये तक याद नहीं कि कुछ देर पहले यहाँ आप मौजूद थीं और उसने आपका रास्ता रोका था, और मैं तुमसे इस वक्त कह रही थी ना कि सलीम अपने होश में नहीं। अब यकीन आया तुम्हें? और मैंने दुलारी से कहा, वाकई आप ठीक कह रही थी मामला जी, दुलारी बोली, लेकिन बात ये समझ में नहीं आई, ऐसा किस तरह हो सकता है? और कुछ बातें ऐसी होती हैं दुलारी जो आदमी की समझ में नहीं आती। अच्छा, मैं आदल से मिलकर आती हूँ। और ये मैं कहकर आगे बढ़ गई। सलीम के ज़हन से हर बात का महू हो जाना यही ज़ाहिर कर रहा था कि चंपा ने उसके ज़हन को आज़ाद कर दिया था, और अब वो चंपा के ज़ेरे असर नहीं रहा। उसके बावजूद मुझे मालूम था कि चंपा फिर किसी भी वक्त उसे मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर सकती है, और मैं यही सोचती हुई तंजीम की इमारत तक पहुंच गई। शिनाख्ती अल्फाज की अदायगी के बाद मेरे लिए फाटक खोल दिया गया, और पिंडत जी कॉन्फ्रेंस रूम में आपका इंतजार कर रहे हैं। फाटक खोलने वाले मसला मुहाफ़िज ने मुझे बताया, और मैं उसका शुक्रिया अदा करके इमारत की तरफ बढ़ने लगी। मैं कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंची तो वहां आदल अकेला नहीं था, रघुवीर और समीउल्लाह भी उसके साथ था। आओ मामला, आदल ने खुश अखलाकी का मुजाहरा किया। आ गई बोलो। और मैं उसी के सामने कुर्सी पर बैठ गई। क्या बात है मामला, क्या तुम इस मकान में खुद को महफूज नहीं समझ रही जो किराए पर मकान लिया है? आदल ने सवाल किया। ऐसी तो कोई बात नहीं। अगर ऐसी बात नहीं तो फिर तुमने कल रात वहाँ क्यों नहीं गुजारी? इसके अलावा तुमसे एक बात और पूछना थी कि सलीम तुम्हारे घर के चक्कर क्यों लगा रहा है, और परसों रात भी उसे तुम्हारे घर आते जाते देखा गया, और कल शाम को भी। आदल की बात सुनकर मैं चौंक उठी और उसे मालूम किया कि तुम्हें इसका कैसे पता चला। उन लोगों से पता चला जो तुम्हारे घर की निगरानी और हिफाजत पर मुकर्रर किए गए हैं, और सलीम के बजाय अगर कोई और अजनबी शख्स होता तो रात के वक्त उससे हरगिज तुम्हारे घर में दाखिल ना होने दिया जाता। हाँ, तुमने सलीम की बाबत मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। सलीम मुझसे नहीं दुलारी से मिलने आता रहा है, लेकिन कल तो उससे खुद आपने ही रात के खाने पर मदऊ किया था। समीउल्लाह ने पहली बार गुफ्तगू में हिस्सा लिया। मैंने उसे मदऊ नहीं किया था, बल्कि कल सुबह आपके सामने झूठ बोल रहा था, और वो इस बहाने दुलारी से मिलना चाहता था। क्या ख्याल है पंडित जी, ये इश्कबाजी कुछ ज्यादा नहीं बढ़ गई? और रघुवीर ने आदल को मुखातब किया, और जिसे वो लोग पिंडत बाल मकंद के नफरदी नाम से पुकारते थे। हाँ मौलवी रघुवीर, तुम ठीक कह रहे हो, आदल ने तायद की। और उसी वक्त एक ख्याल बिजली की तरह मेरे जहन में कूद गया। इस तरह बाआसानी सलीम से पीछा छुड़ाया जा सकता है। और इसी ख्याल के तहत मैंने आदल से कहा, खुद मुझे भी सलीम का अपने घर में आना जाना बिल्कुल पसंद नहीं, और क्या ये मुमकिन है कि उसे वहां से आने से रोक दिया जाए? क्यों नहीं मुमकिन? आदल फौरन बोला। तंजीम के निगरान आला की तरफ से उस पर पाबंदी लगवाई जा सकती है, और मेरा ख्याल है कि बात इस हद तक आगे नहीं बढ़नी चाहिए। मैंने कुछ सोचते हुए कहा, वैसे तो खुद मैं भी उसे अपने घर आने से मना कर चुकी थी, और परसों रात ही, और फिर भी वो नहीं माना, और कल शाम आ गया। ऐसा करो कि जिन लोगों की जिम्मेदारी है मेरे घर की निगरानी और हिफाजत करें, उनसे कह दो कि वह सलीम को मेरे घर आने से रोक दें। इतना काफ़ी है। और मैंने ये बात इसलिए की थी कि अगर तंजीम के निगरानी आला की तरफ से भी सलीम पर पाबंदी आयद कर दी जाती तो भी वो मेरे घर के आने से ना रुकता, और चंपा के ज़हर असर आकर वो सब कुछ भूल जाता। तुम कहती हो तो फिर ऐसा ही कर लेते हैं। इसके अलावा मैं भी अपने तौर पर उसे मना कर दूंगा कि वो तुम्हारे घर का रुख ना करे, ताकि जब उसे रोका जाए तो रोकने वालों के पास इसका जवाब मौजूद हो। और मैं उसे कह दूंगा कि तुम अपने घर से उसका आना पसंद नहीं करती। और शाम को मैं सलार अकबर से मिली तो उसने बताया कि सीक्रेट सर्विस वाले भी तंजीम के खिलाफ सरगर्म अमल है, और गुज़श्ता रोज़ सीक्रेट सर्विस के सरबराह विलियम की निगरानी शुरू करा दी गई। और उसी निगरानी के नतीजे में मालूम हुआ कि गुज़श्ता रात विलियम एस्टेट गेस्ट हाउस में अपने किसी मेहमान से मिला, और जब मुझे उस मेहमान का हुलिया पता चला तो मेरे लहू की गर्दश तेज हो गई।
विलियन का मेहमान मेरा दुश्मन सयान था और अजीम मुहिम्मन की पेश गोई दुरुस्त साबित हुई और मैंने सलार अकबर को बता दिया कि मुझे विलियम के मेहमान से एक दरीना कर्ज चुकाना है। इस सिलसिले में सलार अकबर ने तंजीम की जानब से मुकम्मल तावन का यकीन दिलाया और उसी के साथ बताया कि स्टेट गेस्ट हाउस में दाखिल होना नामुमकिन है और हिफाजती इक़दाम बहुत सख्त हैं और रात के वक्त सर्च लाइट्स भी मसला मुहाफ़ज़ और इर्द गिर्द का जायज़ा लेते रहते हैं। उसने मुझे मशवरा दिया कि जल्दबाजी से काम ना लूँ और मज़ीद मालूमात हासिल होने दूँ और मेरा दुश्मन 7 पहरों में बैठा है मगर मुझे हर हाल में उस तक पहुँचना था और मेरे सारे ज़ख्म जैसे हरे हो गए थे। उसी रोज़ रात को मैं आदल के साथ स्टेट गेस्ट हाउस का जायज़ा लेने रवाना हो गई। हम दोनों एक कार में थे और कार उस इमारत के सामने से गुजरी और फिर इमारत की अकब में वाक़या सड़क पर पहुंची और इमारत की छत पर भी मैंने मसला मुहाफ़ज़ों को देखा। वाकई वहाँ इंतहाई सख्त हिफाजती इक़दाम थे और मेरे कहने पर आदल दोबारा उस इमारत के सामने से गुजरा। उसी वक्त मुझे अपने दुश्मन सयान की आवाज़ सुनाई दी कि तुम मेरी तलाश में यहाँ तक तो पहुँच गई है और मैं तुझे अपने पास बुलवा ही लेता हूँ और मैं चंपा को भेज रहा हूँ, वो तुझे बांध कर मेरे पास ले आएगी। और मुझे इल्म था कि सयान ने भी कुछ शैतानी कुव्वतें हासिल कर ली थी और अचानक कार चलते चलते रुक गई जैसे किसी नादीदा कुव्वत ने उसे आगे बढ़ने से रोक दिया हो और आदल ने उस पर अज़हार हैरत किया। ऐन उसी लम्हे मेरी समाज से चंपा का जहरीला कहका टकराया। सयान के दावे के मुताबिक मुझे बांध कर ले जाने के लिए आ पहुंची थी और अभी चंद ही लम्हे गुजरे होंगे कि मुझे कार के अंदर शदीद घुटन का एहसास हुआ और मेरी सांस रुकने लगी और मुझे यूं लगा कि कार में बैठी रही तो मेरा दम घुट जाएगा और मैंने तेजी के साथ कार का दरवाज़ा खोला और नीचे आ गई। उसी वक्त आदल की बुलंद आवाज़ आई, मामला कहाँ जा रही हो? और कार से उतरते ही घुटन का एहसास खत्म हो गया। आदल की आवाज़ सुनते ही मैंने मुड़कर देखा और लम्हे के लिए कार नज़रों से उजल हो गई और मैं हैरान थी कि आदल मुझे वहाँ किस तरह छोड़कर चला गया और उससे मुझे यह तवक्का नहीं थी और अभी तक मैं उसी जगह खड़ी थी जहाँ कार से उतरी थी और अचानक मेरी समाज से नामानूस सहर अंगेज मौसीकी की आवाज़ टकराई और मैं चौंक उठी। ऐसी पुरकशिश मौसीकी मैंने एक मर्तबा बस्ती आशर के नवाब में सुनी थी और मेरे कदम जैसे खुद ब खुद उसकी तरफ उठने लगे। कुछ ही फासले पर इमारत नजर आ रही थी और जिसके सामने से मैं कार में बैठकर गुजरी थी और मेरे कदम उसी तरफ उठ रहे थे क्योंकि सहर अंगेज मौसीकी की आवाज़ उधर से आ रही थी। मुखालफ सिमत से एक बग्गी भी मुझे इमारत ही की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दी और उस बग्गी के आगे आगे मैंने 2 मसला घोड़सवारों को भी देखा और फिर उधर वो बग्गी इमारत के सामने आकर रुकी और उधर मैं वहां पहुंची और बग्गी के रुकते ही उसमें से एक दराज कद खूबसूरत औरत बेहतरीन लिबास से ज़ेबे तन किए उतरी और उस औरत का चेहरा मेरे लिए अजनबी नहीं था। वो चंपा थी जो अपने लिबास से कोई शहजादी मालूम हो रही थी और मेरी और उसके दरमियान फासला ना होने के बराबर था। और चंपा ने मेरी तरफ निगाह उठाई और उसकी और मेरी नज़रें मिली और मेरे जिस्म को झटका सा लगा और मौसीकी की आवाज़ आना बंद हो गई। आओ मामला, मेरे साथ आओ। चंपा ने दोस्ताना अंदाज में मेरी तरफ हाथ बढ़ाया और उसकी नज़रें अब तक मेरी नज़रों से मिली हुई थी और मैं कुछ कहे बगैर गैर इरादी तौर पर अपना हाथ चंपा के हाथ में दे दिया। तुम वही करोगी जो कहा जाएगा। और मेरे ज़हन में चंपा की आवाज़ गूंजी और उसके होंठ बेहसो हरकत थे लेकिन आवाज़ सुनाई दे रही थी। बोलो मामला, मेरा हुक्म मानोगी? हाँ, मैं वही करूँगी तुम कहोगी। और मैं आप ही आप बड़बड़ाने लगी और मैं तुम्हारा हर हुक्म मानूंगी। तो फिर मेरे साथ सयान के पास चलो, वो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। और चंपा ने कहा और फिर मेरा हाथ थामे इमारत के आखिरी फाटक की तरफ बढ़ने लगी और चंपा ने मेरी तरफ से अपनी नज़रें हटा ली थी लेकिन मेरे ज़हन पर अब भी एक गिरफ्त बरकरार थी और ये गिरफ्त पहली मर्तबा उस वक़्त मुझे महसूस हुई थी और चंपा की नज़रों से जब मेरी नज़रें मिली थी और मेरे जिस्म को झटका सा लगा था और मैं गोए अब अपने इख्तियार में नहीं रही थी और मुझे साथ लिए चंपा आखिरी फाटक तक पहुंची तो इधर से उधर तक मसला मुहावज़ों की एड़ियां बाज उठीं और चंपा को सलूट देने के बाद उन्हीं में से 2 मुहावज़ों ने तेजी से आगे बढ़कर आखिरी फाटक खोल दिया और मैं ख्वाब के से आलम में ये सब कुछ देखती हुई चंपा के साथ फाटक से गुजर कर अंदर दाखिल हो गई। मैंने अकब में ज़ैली फाटक के बंद होने की आवाज़ सुनी लेकिन ख्वाहिश के बावजूद मुड़ कर न देख सकी। दोनों जानब सरसब्दो शादाब वसी दालान था और जिसके दरमियान रास्ता था और चंपा मुझे लिए हुए उसी रास्ते पर आगे बढ़ रही थी और मेरा हाथ अब तक उसके हाथ में था।
रास्ते की दोनों तरफ थोड़े थोड़े फासले से दरख्त लगे हुए थे और मैंने उन दरख्तों की ओट में भी मसला मुहावजों की झलक देखी। उस रास्ते के इख्तिताम पर सुर्ख पत्थर की सीढ़ियां बनी हुई थी और मैं चंपा के साथ उन सीढ़ियों पर बढ़ने लगी और ऊपर बड़ा सा चबूतरा था और सामने ही दालान नजर आ रहा था। बाजार वहां कोई दिखाई नहीं दिया और दालान के बड़े बड़े 3 मोहराबी दरवाजे थे और जिनमें से दरमियानी दरवाजा खुला हुआ था। और अचानक हल्की हल्की सहर अंगेज पुरकशिश मौसीकी फिर सुनाई देने लगी, जो लम्हा बे लम्हा तेज होती गई और चंपा लान अबूर करके दरमियानी दरवाजे के सामने पहुंची और फिर गायब हो गई। और अब मैं वहां अकेली थी। मैं दरमियानी दरवाजे से अंदर दाखिल हो गई और वो एक बड़ा सा हाल था जिसके फर्श पर दबीज कालीन बिछे हुए थे। सामने बाएं जानब ऊपर जाने के लिए चौड़ी सीढ़ियां बनी हुई थी और मेरे कदम जैसे खुद ब खुद सीढ़ियां चढ़ने लगे और उसी वक्त अकब से दरवाजा बंद होने की आवाज आई, मगर मैं उसे बेपरवाह होकर आगे बढ़ती रही और मौसीकी की आवाज उसी सिमत से आ रही थी। और मेरे हाथों मारे जाने वाले साहर ज़हीम ने भी मुझ पर काबू पाने के लिए ऐसा ही सहर अंगेज मौसीकी को जरिया बनाया था और वह साहरों की बस्ती सार ज़ूम का रहने वाला था। सयान में कुछ अरसे वहां रहा था और यकीनन ये सहर उसने वहीं सीखा था और मैं अब जीने के तकरीबन निसफ सीढ़ियां चढ़ चुकी थी। उस इमारत में मेरे दाखिले के लिए सयान ने चंपा को इस्तेमाल किया था और जिसे मुहाफत अच्छी तरह जानते पहचानते थे और अब मैं इमारत के अंदर पहुंच चुकी थी। इसलिए सयान ने दोबारा बराह रास्त अपने शहर में गिरफ्तार कर लिया और उसे शायद अब चंपा की जरूरत नहीं रही। और मैं दाएं जन्म मुड़कर जीने की बकिया सीढ़ियों पर चढ़ने लगी और मौसीकी मुझे उस तरफ से अपनी खींच रही थी। सयान अगर खुद ही ना चाहता तो यकीनन मैं उस इमारत में दाखिल नहीं हो सकती थी। उसने अपनी शैतानी ताकतों के जरिए यह मालूम कर लिया था कि मैं उस इमारत के इर्द गिर्द मंडला रही हूँ और उसी मौका से फ़ायदा उठाकर उसने मुझे काबू में कर लिया। और उसके लिए सयान ने बड़ी महाराज की दस्ते रास चंपा से भी मदद ली और इसका वाज़ेह मतलब यह था कि बड़े महाराज से भी मेरे दुश्मन की साज़बाज़ थी। और मुझे ये भी मालूम था कि बंगाल के चीफ इंटेलिजेंस डे सोजा को दारुल हुकूमत से यह काम भी मिले थे कि बड़े महाराज मंदर मोहन के साथ हर तरह का तावन किया जाए और चंदर मोहन को अंग्रेज हुकूमत की सरपरस्ती हासिल थी। सीढ़ियां चढ़ने के बाद बाएं जानब मुझे एक राहदारी नजर आई। मैं उस तरफ मुड़ गई और राहदारी के शुरू हुई में दाएं तरफ एक दरवाज़ा खुला हुआ था। आज चली आज सरदार हाशिम की कंवारी बेटी और सरदारों का सरदार सयान तेरा मुंतजर है और उसकी आगोश मेरे लिए खुली हुई है। और खुले हुए दरवाजे से मेरे दुश्मन की आवाज़ आई और सहर अंगेज मौसीकी अचानक रुक गई और उसी के साथ मुझे यूं लगा कि मेरा वजूद किसी नादीदा गिरफ्त से आज़ाद हो गया। ऐ सयान, ऐ मेरे बाबा और मेरी माँ के कातिल, मैं तेरी मौत बनकर आ रही हूँ। और मैं उठी और फिर दौड़ते हुए खुले दरवाजे में दाखिल हो गई। अपनी बात के जवाब में मुझे सयान का करी और बुलंद कहका सुनाई दिया और अपने दुश्मन का कहका सुनकर मेरे तन बदन में आग लग गई। जहां मैं दाखिल हुई थी वहां एक बड़ा सा कमरा मालूम होता था और कमरे के दरमियानी हिस्से की हर तरफ तारीकी फैली हुई थी और सयान मुझे कमरों के बीचों बीच खड़ा हुआ दिखाई दिया। एक चमकीला हिसार उसके इर्द गिर्द मोहित था और वो रोशनी उसी हिसार की थी। सयान को मैंने उसी वक्त देखा था जब मेरी उम्र 7-8 साल की थी और अब बरसों के बाद देख रही थी। और 10-11 साल का अरसा गुजर जाने के बावजूद उसके चेहरे में कोई खास तब्दीली नहीं हुई और वही तंग पेशानी, भुवों की जगह 2 बारीक बारीक सी लकीरें और हल्कों के अंदर धंसी हुई 2 छोटी छोटी आंखें और रुखसारों की हड्डियां उभरी हुई, चपटी नाक मगर नथने फूले हुए, सफाक होंठ और चौड़ा दहाना और दहाने के नीचे ठोड़ी पर लंबा सा जख्म का एक निशान जो किसी जंग की यादगार था। और मैं उसके चेहरे को कैसे भूल जाती। वही चेहरा तो मेरी तमाम तर नफरतों का मरकज था और उस पर एक नज़र डालते ही मैं जैसे अपने होश हवास में ना रही और अपने अंजाम की परवाह किए बगैर मैं तेज़ी से उसकी तरफ दौड़ी। और उस वक़्त मैं भूल ही गई थी कि उसके अतराफ हिसार कायम है और मैं दौड़ते हुए हिसार से टकरा गई और उछलकर दूर जा गिरी और मेरे जिस्म को शदीद झटका लगा। मेरी आगोश में आने की तुझे इतनी जल्दी है मामला। और सयान ये कहकर जोर से हंसा। बुज़दिल, फर्श से उठते हुए मैंने चीख कर कहा। गुस्से की ज्यादती के सबब मेरे सारे जिस्म में बिजलियां सी दौड़ने लगी और फिर उन बिजलियों का मेरी दोनों आंखें बन गईं और अजीम मुहिम्मत की अदा करदा पुर इसरार कुव्वतों में से एक हैरत अंगेज कुव्वत मेरे अंदर बेदार हो रही थी। और तवक्का के मुताबिक चंद ही लम्हों के बाद मेरी आंखों से
जिंदा जला डालने वाली रोशनी खारिज हुई और मेरी नजरें सयान ही की तरफ उठी हुई थी और मेरी आंखों से खारिज होने वाली रोशनी सयान के गिर्द मोहित चमके हिसार से टकराई और जबरदस्त कड़ाका सुनाई दिया और उसी के साथ फिजा में तेज हवा के साथ चिंगारियां बिखरने लगी और मेरी आंखों से निकलने वाली रोशनी दोबारा मेरी आंखों में दाखिल होकर गायब हो गई और बिजलियों की गर्दिश थम गई और मैंने सयान के गिर्द कायम हिसार को टूटकर बिखरते हुए देखा और मुझे सयान की चीखें सुनाई दी और फिर कमरे में अंधेरा फैल गया। ऐन उसी लम्हे मेरे अंदर एक और पुरअसरार कुव्वत जाग उठी और कमरे में गहरी तारीकी होने के बावजूद मुझे सब कुछ रोज़े रोशन की तरह नजर आया और मेरी नज़र सयान पर पड़ी और वह कमरे के अकबी दरवाजे की तरफ भाग रहा था। अकबी दरवाज़ा खुला हुआ था और जिसके बाहर भी अंधेरा फैला हुआ था। बचकर कहाँ भाग रहा है कमीने, और मैंने अपने दुश्मन को ललकारा और फिर दूसरी लम्हे जरकंद भरी और उसके बाद मेरे और सयान के दरमियान चूहे और बिल्ली का खेल शुरू हो गया और वह सारी इमारत में चकराता फिर रहा था और मैं उसके ताक़ुब में थी। आखिरकार वो एक कमरे में घर ही गया और मैंने उसे कमरे में दाखिल होते ही तेजी के साथ पलटकर अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया। चूहे, अब तू कहाँ भाग कर जाएगा? और मैं उसकी तरफ मुड़ते हुए बोली और मैंने उसे कमरे में मौजूद खिड़की खोलकर उस पर चढ़ते देखा और मैं चश्मे ज़ूर में जैसे उड़ती हुई वहां तक पहुंच गई। उसके बावजूद मुझे देर हो गई और उसने खिड़की से बाहर छलांग लगा दी और ये उस इमारत का अकबी हिस्सा था और इमारत के अकब में वाक़या मैदान को मैं पहले ही देख चुकी थी। सयान उसी मैदान में कूदा था और मैदान में अंधेरा फैला हुआ था, मगर मैं सयान को उठकर भागते वाज़ेह तौर पर देख रही थी और मैंने खिड़की पर चढ़कर नीचे कूदने में देर नहीं की और सयान मुझे मैदान के सिरे पर भागता हुआ दिखाई दिया और मैं उसकी तरफ दौड़ रही थी। अचानक इमारत की छत से सूरज लाइट का दायरा नीचे मैदान में हरकत करने लगा और मेरे और सयान के दरमियान वो मुतहरक रोशन दायरा हायल हो गया था। अगर मैं भागते भागते एकदम ना रुक जाती तो यकीनन सर्च लाइट की जिद में आ जाती। छत पर मौजूद मसला मुहाफ़िज़ मुझे देख रहे थे और फिर शायद मेरे जिस्म को गोलियों से छलनी कर देते। रोशनी की मुतहरक लहकीर को मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपनी तरफ बढ़ते देखा तो उसकी मुखालफ सिमत छलांग लगा दी और सयान को भूलकर अब मैं सर्च लाइट से बचने की कोशिश कर रही थी। सर्च लाइट के जरिए गालबन पूरे मैदान का जायजा लिया जा रहा था। मैं इधर से उधर छलांगे लगाकर सर्च लाइट से बचती रही और चंद ही मिनट की इस उछल कूद ने मेरे असाब में तनाव पैदा कर दिया और फिर सर्च लाइट बुझ गई तो मैदान में हर तरफ तारीकी छा गई। उस दौरान में मेरे अंदर अंधेरे में देखने की पुरअसरार कुव्वत भी खत्म हो चुकी थी और कुछ फासले पर मुझे उस सड़क के किनारे लगे हुए खंभों की रोशनी दिखाई दी जहां से मैं कार में बैठकर आदल के साथ गुजरी थी और आदल ने मुझे बताया था कि हर 10-15 मिनट के बाद सर्च लाइट से अतराफ का जायजा लिया जाता है और सर्च लाइट के दोबारा हरकत में आने से पहले मुझे इस मैदान के हदूद से निकल जाना चाहिए। और यही सोचकर मैं तेजी के साथ सड़क की तरफ बढ़ने लगी और हर तरफ अंधेरा छाया होने के सबब अब कोई मुझे वहां नहीं देख सकता था। अस्टेट गेस्ट हाउस में दाखिल होकर जिंदा सलामत निकल आने की खुशी से ज्यादा मुझे इस बात का रंज था कि मेरा दुश्मन बच कर निकल गया और मुमकिन है कि सर्च लाइट मेरी राह में हायल ना हो जाती तो सयान को फरार का मौका ना मिलता, मगर अब पछताने से कुछ हासिल ना था। अभी शायद मेरे दुश्मन को आखिरी वक्त नहीं आया था। उस इमारत के अकबी हिस्से में जो सड़क थी तकरीबन वीरान थी और अब तक मुझे वहां से कोई गुजरती गाड़ी दिखाई नहीं दी और मैं वहां पहुंचकर अपनी याददाश्त के सहारे एक तरफ बढ़ने लगी और दूर पैदल चलने के बाद मैं एक ऐसी सड़क तक पहुंचने में कामयाब हो गई जिस पर ट्रैफिक रवा दवा थी। सड़क के किनारे खड़ी हुई मैं किसी खाली टैक्सी का इंतजार करने लगी और मेरे सामने से ज्यादातर गाड़ियां गुजर रही थी। उस इलाके में कयाम परीद अफराद की अक्सरियत के पास शायद अपनी सवारियां थी और गालबन इसीलिए टैक्सी वहां कम होगी और मुझे वहां टैक्सी का इंतजार करते हुए बेजारी महसूस होने लगी और खड़े हुए मुझे 15 मिनट से ज़्यादा हो चुके थे। थोड़े थोड़े वक्फे से गुजरने वाली कारों की हेडलाइट मुझ पर पड़ रही थी और मेरी गुजरती हुई ट्रैफिक पर ही थी और एक टैक्सी गुजरी भी थी तो वो खाली नहीं थी। अचानक एक लंबी सी गाड़ी मेरे करीब से गुजरती हुई रफ्तार धीमी करते करते कुछ दूर आगे जाकर रुक गई और फिर मैंने रिवर्स में उसे तेजी के साथ अपने करीब आते देखा तो चौंक उठी। हेलो रानी, कार में बैठे हुए शख्स ने मुझे पुकारा और पुकारने वाले का लहजा जाहिर कर रहा था कि वो गैर मुल्की है। जाने क्यों मुझे उस शख्स की आवाज़ सुनी हुई सी लगी और कार के अंदर अंधेरा था इसलिए मैं उसका चेहरा नहीं देख सकी। तुमने मुझे पहचाना मिस रानी?
اور اسی شخص نے پھر مجھے انگریزی میں مخاطب کیا اور اسی کے ساتھ کے اندر کی لائٹ جل گئی۔ فلپ، بے اختیار اس کا نام میری زبان پر آ گیا اور میں اسے پہچان گئی۔ یہ وہی انگریز تھا جس نے کلکتہ سے دہلی تک میرے ساتھ سفر کیا تھا۔ اوہ یس، وہ خوش دلی سے مسکرایا، مگر مجھ سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس نے یقیناً میرے چہرے پر پیدا ہونے والے تاثرات دیکھ لیے۔ آؤ کار میں بیٹھ جاؤ، تم جہاں کہو گی میں تمہیں چھوڑ دوں گا، اور تم یہاں شاید کسی خالی ٹیکسی کی تلاش میں کھڑی ہو۔ فلپ کے متعلق سفر کے دوران میں مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ وزارت داخلہ میں ایڈیشنل سیکرٹری کے عہدے پر فائز ہے، اور ٹرین میں راجہ سکھ دیو کے قتل سے پہلے میں نے فلپ کی بابت یہی سوچا تھا کہ وہ کام کا آدمی ہے، اور اس نے مجھے نئی دہلی میں اپنی کوٹھی اور دفتر کا پتہ بھی دیا تھا، اور ولیم نامی کسی شخص سے اس کی بیوی مارگریٹ کے تعلقات بھی تھے، اور جس کے متعلق میرا قیاس یہ بھی تھا کہ وہ شخص سیکرٹ سروس کا سربراہ ولیم رائٹ بھی ہو سکتا ہے، اور چمپا نے مجھے فلپ کی نظروں میں ایک قاتلہ ثابت کر دیا تھا۔ راجہ سکھ دیو کے قتل میں ایک عینی شواہد فلپ بھی تھا، اور ان حالات میں ظاہر ہے کہ اس سے ملنا میرے لیے خطرناک ہی تھا، اور فلپ نے اس وقت مجھے گرفتار کرانے کی کوشش بھی کی تھی، مگر اب اس کا رویہ قطعی دوستانہ تھا۔ اسی وجہ سے شاید میں الجھن کا شکار ہو گئی اور اس کی دعوت قبول کروں یا نہ کروں، اور غالباً اس نے میرے چہرے سے تذب ذب کا اندازہ کر لیا اور کہنے لگا، گھبراؤ مت مس رانی، مجھے اس بوڑھے راجہ سے کوئی ہمدردی نہیں جو راستے میں تمہارے ہاتھوں مارا گیا۔ بھول جاؤ اس واقعے کو، اور میں تمہاری طرف جو دوستی کا ہاتھ بڑھا رہا ہوں اسے جھٹکو مت۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تمہاری طرف سے کوئی قدم نہیں اٹھاؤں گا، اور یقین کرو مجھ پر۔ فلپ کے لہجے سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہا، اور اس نے میرے لیے اپنی برابر والی نشست کا دروازہ کھول دیا تھا اور مجھ سے کار میں بیٹھنے کو کہہ رہا تھا، اور میں یہ سوچتے ہوئے آگے بڑھ کر کار میں بیٹھ گئی کہ اگر اس نے وعدہ خلافی کی تو میرے لیے اسے ڈانٹ دینا مشکل نہیں ہوگا، اور کار میں بیٹھتے ہی میں نے دروازہ بند کر لیا۔ تھینک یو مس رانی کہ تم نے مجھ پر بھروسہ کیا، فلپ نے مجھ سے کہا، اور کار سٹارٹ کر دی۔ اور پھر تمہیں کہیں جانے کی جلدی نہ ہو تو کچھ دیر کہیں بیٹھتے ہیں۔ کہاں؟ میں نے سوال کیا۔ ویسے تو میری کوٹھی بھی یہاں سے زیادہ دور نہیں، مگر وہاں مارگریٹ بھی ہوگی جو یقیناً تمہیں میرے ساتھ دے کر بھڑک اٹھے گی، اسی لیے کسی ہوٹل میں چلتے ہیں، فلپ نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، اور میں نے رضامندی ظاہر کر دی۔ فلپ نے ایک بار پھر میرا شکریہ ادا کیا اور پھر پوچھا، کیا تم اپنے اسی دوست کے ساتھ ٹھہری ہو جو روانگی سے دہلی کے کسی علاقے میں رہتا ہے، اور مجھے اس کا نام یاد نہیں آ رہا؟ کیا نام تھا؟ کوچا چیلان۔ میں نے دانستہ دروغ مسئلے سے امیدی سے کام لیا، اور میں موجودہ صورتحال میں اسے شہزاد کے گھر کا پتہ بھی بتانا نہیں چاہتی تھی۔ شاید اس علاقے کا یہی نام بتایا تھا تم نے؟ اس نے اسوات میں سر ہلایا۔ کوچا چیلان، اس نے محلے کا نام دہرایا۔ اب میں یاد رکھوں گا۔ یہ کیسی عجیب بات تھی کہ جو حکومت میرے متعلق چھان بین میں لگی ہوئی تھی، اسی کا ایک اعلیٰ افسر اس وقت میرے ساتھ تھا، اور یہ جاننے کے باوجود کہ میں ایک قاتلہ ہوں وہ مجھ سے رشتہ دوستی استوار کرنے کا آرزومند تھا، اور میرے نزدیک اس کی ایک وجہ ہو سکتی تھی کہ چمپا نے اسے میرے قریب آنے کا جو دھوکہ دیا تھا، فلپ یقیناً اسے بھول نہیں سکا تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد فلپ کی کار ایک 5 اسٹار ہوٹل کے احاطے میں داخل ہوئی۔ اس نے اپنی کار جہاں پارک کی وہیں ایک اور کار پر نظر پڑتے ہی میں چونک اٹھی۔ کیا ہوا فلپ؟ میں نے اس کار سے اترنے کے لیے دروازے کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، کوئی خاص بات نہیں، فلپ نے جواب دیا، اور ایک شناسا کی کار بھی یہاں کھڑی ہے، اور اس نے قریب ہی کھڑی کار کی طرف اشارہ کیا۔ اس کے چہرے سے قدری فکر مندی جھلک رہی تھی۔ تو پھر کیا ہوا؟ اگر اس سے تمہارے ساتھ ملاقات ہو گئی تو مارگریٹ کو بھی خبر ہو جائے گی، لیکن ایک حل ہے اس کا، پھر مارگریٹ کو پتہ نہیں چلے گا کہ میں تم سے ملا تھا۔ تم ایسا کرنا رانی کہ اگر کوئی مل جائے اور اس سے میں تمہارا تعارف کراؤں تو تم اپنا رام رانی نہ بتانا، سمجھ گئی نا؟ اور فلپ نے ایک راستہ نکال لیا۔ ٹھیک ہے، تم فکر نہ کرو، میں اپنا نام گریٹا بتا دوں گی، اور میرے جسم پر اس وقت پینٹ اور شرٹ تھی، اور فلپ کا شناسا مجھے ویسے ایسائی سمجھ سکتا تھا، اور میں نے اس لیے یہ نام لیا۔ گڈ۔ فلپ کے چہرے سے اطمینان ظاہر ہونے لگا، اور مارگریٹ کہہ رہی تھی کہ چند روز پہلے اسے تمہاری کوئی ہم شکل کناٹ پیلس میں ملی تھی، اور مارگریٹ نے اس سے بات بھی کی تھی، مگر وہ کوئی اور نکلی۔ اچھا خیر، چلو اترو۔ فلپ نے اپنی طرف کا دروازہ کھولا اور میں نیچے اتر گئی۔ فلپ نے کار کو متکفل کیا اور میرے ساتھ ہوٹل کے صدر دروازے کی طرف بڑھا۔ فلپ کے ساتھ میں ہوٹل کے ہال میں پہنچی، اور وہاں تقریباً تمام ہی میزیں بھری ہوئی تھیں، اور وہاں موجود لوگوں میں سے زیادہ تعداد غیر ملکیوں کی تھی۔ ہیلو مسٹر فلپ، ایک طرف سے بھاری مردانہ آواز سنائی دی،
اور میں نے بھی فلپ کے ساتھ ادھر مڑ کر دیکھا۔ آواز دائیں سمت کی ایک میز سے آئی تھی۔ اس میز پر ایک غیر ملکی جوڑا بیٹھا تھا اور مرد کی شکل کسی بل ڈاگ سے مشابہ تھی، اور بھاری جبڑے اور پھولی ہوئی ناک اور موٹے اور بھدے نقوش، البتہ لڑکی نازک سی اور خوبصورت تھی۔ اوہ مسٹر ولیم، فلپ ادھر بڑھتے ہوئے بولا، اور اس نے مجھے آگے بڑھنے کا اشارہ کیا تھا۔ اس شخص کا نام سن کر میں چونک اٹھی، اور کم مان مسٹر فلپ، بل ڈاگ سے مشابہ شخص نے دعوت دی، اور فلپ اس شخص کی دعوت قبول کر لی، اور غالباً اس کی وجہ اور ارد گرد کوئی میز خالی نہ ہونا تھا۔ اور پہلے ولیم نے اپنے ساتھ موجود خوبصورت لڑکی کا تعارف کرایا، اور لڑکی کی عمر 18-19 سے بھی زیادہ نہیں لگتی تھی، اور اس کا نام الزبتھ تھا۔ اور الزبتھ نے گرم جوشی کے ساتھ پہلے فلپ اور پھر مجھ سے ہاتھ ملایا۔ اور یہ ہے مس گریٹا، میری گرل فرینڈ۔ فلپ نے میرا نام بتایا، اور ولیم نے میری طرف مسافے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے خود ہی اپنا تعارف کرا دیا، اور مجھے ولیم رائٹ کہتے ہیں۔ اور یہ سنتے ہی میرے ذہن کو جھٹکا سا لگا۔ اب اس میں کوئی شک نہیں رہا کہ بل ڈاگ سے مشابہ شخص سیکرٹ سروس کا سربراہ تھا، اور حیرت کے سبب میں اس کے ہاتھ ملانا بھی بھول گئی تھی، اور میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ آج ہی ولیم رائٹ سے بھی ملاقات ہو جائے گی، اور اس کا نام کلکتے سے دہلی آتے ہوئے دوران سفر پہلی بار میں نے مارگریٹ کی زبانی سنا تھا، اور مارگریٹ اور ولیم کے مراسم تھے۔ اور اس بات کی تصدیق فلپ کی تاکید سے بھی ہوئی کہ میں اس شخص کو اپنا نام رانی نہ بتاؤں، ورنہ مارگریٹ کو بھی فلپ سے میری ملاقات کا علم ہو جائے گا، اور ولیم سے مارگریٹ کے مراسم کی نوعیت کیا تھی یہ بات میرے لیے علم میں تھی۔ مارگریٹ نے اپنے شوہر کو دھمکی دی تھی کہ اگر اس نے مجھ سے تعلقات برقرار رکھے تو وہ بھی کھلے عام ولیم سے ملے گی، اور فلپ کیونکہ خود ایک بڑا افسر تھا، اس لیے حلقہ احباب میں بڑے افسران کا ہونا ہی ممکن تھا۔ اور مس گریٹا، آپ کو شاید مجھ سے مل کر خوشی نہیں ہوئی، ولیم نے مجھے مخاطب کیا، اور اس کا ہاتھ اب تک میری طرف بڑھا ہوا تھا۔ اوہ نو مسٹر ولیم، میں چونک کر مسکرائی، اور جلدی سے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیا، اور پھر اسے ملاقات پر خوشی کا اظہار بھی کیا۔ ہمارے آنے سے قبل وہ لوگ مے نوشی کر رہے تھے، اور میز پر شراب کی بوتل اور گلاس رکھے ہوئے تھے۔ فلپ نے تو مے نوشی کی دعوت قبول کر لی، مگر ظاہر ہے کہ میں نے معذرت کر کے اپنے لیے کافی کو کہہ دیا، اور ولیم نے اس بات پر اظہار حیرت کیا، اور پھر ویٹر کو بلا کر کافی لانے کا آرڈر دے دیا۔ ذرا ہی دیر کے بعد وہاں رقص کا راؤنڈ شروع ہوا، اور جوڑے اپنی اپنی میزوں سے اٹھ کر ڈانس فلور کی طرف جانے لگے، اور ولیم نے مجھے اپنے ساتھ رقص کی دعوت دی، اور میں نے یہ بتائے بغیر کہ مجھے رقص کرنا آتا نہیں نرمی کے ساتھ انکار کر دیا۔ اور اس پر ولیم میں نے خیز انداز میں مسکرایا اور بولا، آئی سی گریٹا، شاید آپ دونوں تنہائی میں کچھ باتیں کرنا چاہتے ہیں۔ اور پھر اس نے الزبتھ کا ہاتھ تھاما اور اٹھ کر کھڑا ہوا، اور ولیم الزبتھ کے ساتھ آگے بڑھ گیا تو فلپ نے مجھے مخاطب کیا۔ مجھے جس بات کا خدشہ تھا وہی ہوا۔ آج کی ملاقات تشنہ رہی، اور تمہارے پاس میرے دفتر کا پتہ تو ہے نا، اور کل 4:30 بجے سے پہلے آ جاؤ، پھر کہیں تنہا آرام سے بیٹھ کر باتیں کریں گے، اور پتہ ہے نا تمہارا پاس؟ ہاں لکھا ہوا ہے، میں نے جواب دیا، مگر ضروری نہیں کہ میں کل ہی آ جاؤں، یہ وعدہ رہا کہ کسی بھی دن میں آ جاؤں گی۔ ٹھیک ہے، کل نہ صحیح پھر کسی دن آ جانا، لیکن جلدی آنا، اور میں تمہارا بے چینی سے انتظار کروں گا۔ فلپ نے اپنے گلاس سے شراب کا گھونٹ بھرنے کے بعد کہا، اور پھر بولا، ہاں یہ بتاؤ کہ اب تمہیں یہ تو یقین آ گیا کہ میں تمہارے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھاؤں گا؟ ہاں فلپ، میں نے اقرار کیا، اور پھر ولیم کے متعلق مزید تصدیق کی خاطر پوچھا۔ ولیم رائٹ بھی تمہاری طرح کسی بڑے سرکاری عہدے پر فائز ہوگا، تمہارا اندازہ غلط نہیں، وہ سیکورٹی کے ایک ادارے کا سربراہ ہے، لیکن اس کا ادارہ میرے ہی محکمے کے تحت آتا ہے۔ اور فلپ نے مجھ سے جھوٹ نہیں بولا، اور اس سے میں نے اندازہ لگایا کہ وہ میرے ساتھ مخلص ہے، اور مجھے ولیم رائٹ کے متعلق حقیقت سے آگاہ کرنے میں کوئی رازداری ضروری نہیں سمجھتا۔ ہر چند کے فلپ نے ولیم کے ادارے کا نام نہیں بتایا تھا، مگر میرے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ یہ وہی تو نہیں جس کا ذکر تمہاری مسز نے سفر کے دوران کیا تھا؟ میں نے مسکرا کر سوال کیا، اور فلپ نے برا سا منہ بنایا اور پھر کہنے لگا، ہاں یہ وہی ہے، اور میں اسی لیے اسے پسند نہیں کرتا، اور مجھے حیرت ہے کہ تمہارے مقابلے میں مارگریٹ اس جیسے کرخت شخص کو کیسے پسند کرتی ہے، اور کچھ عورتوں کی ایسے ہی رف اینڈ ٹف مرد پسند آتے ہیں، اب اسی الزبتھ کو دیکھ لو۔ ہاں یہ بات تو ہے، اور ولیم عمر میں الزبتھ سے دکھنا ہوگا۔ اور اسی وقت اچانک موسیقی کا ایک چھناکا سا ہوا، اور اسی کے ساتھ ہال کی تمام بتیاں
चंद लम्हों के लिए बुझ गई और फिलिप ने झुक कर मेरा हाथ चूम लिया और बत्तियां दोबारा जल गईं। रक्स का राउंड खत्म हो गया तो विलियम और एलिजाबेथ मेज पर आकर बैठ गए। अच्छा मिस्टर विलियम, अब हम चलेंगे, फिलिप ने अपने गिलास से आखिरी घूंट लेकर कहा। अब आपसे कब मुलाकात होगी मिस गरीटा? विलियम ने खिलाफे तवक्का बराह रास्त मुझसे सवाल किया। किसी भी दिन मिस्टर फिलिप के साथ फिर कभी मुलाकात हो जाएगी, मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया। क्या ये मुलाकात मिस्टर फिलिप के बगैर मुमकिन नहीं? और वो बेहजाबी से बोला, और शायद उन गैर मुल्कियों में तहजीब में ऐसी बातों को गैर शाइस्ता तस्वर नहीं किया जाता था। और मेरा दिल तेजी से धड़क उठा। विलियम मुझे खुद ब खुद अपने करीब आने का मौका दे रहा था और मेरे ख्याल में वो कोई मामूली आदमी नहीं था और वो दो आला अंग्रेज हकाम में से एक था जिनके हुक्म में से ये बात कि अंग्रेज हुकूमत मेरे मुतल्लक क्यों छानबीन कर रही है। और क्यों नहीं मिस्टर विलियम, मैं बोल उठी, मिस्टर फिलिप के बगैर भी आपसे मुलाकात मुमकिन है। कब और कहाँ? कल तो मैं कुछ मसरूफ़ हूँ मिस गरीटा। परसों रात आप यहीं इसी होटल में रात को 9 बजे मेरे साथ डिनर कीजिए। अगर आप तशरीफ़ लाई तो मैं इसे अपनी इज्जत व अफजाई समझूंगा और मैं ज़रूर आऊँगी, मैंने वादा कर लिया। फिलिप ने भी फौरन ही कर्ज उतार दिया था और उसने भी आइंदा रोज डिनर पर एलिजाबेथ को एक और 5 स्टार होटल में मदऊ कर दिया और मेरी ही तरह एलिजाबेथ ने भी फिलिप की दावत कबूल कर ली। उसके बाद हम एक दूसरे से मुसाफा करके उठ खड़े हुए और होटल से बाहर आते ही एक खाली टैक्सी पर नजर पड़ गई और इस वक्त कोई शख्स उससे उतरा था और मैंने हाथ के इशारे से टैक्सी को रोका तो फिलिप बोल उठा, तुम्हें मैं छोड़ दूंगा, टैक्सी की क्या ज़रूरत है? नहीं, मैं टैक्सी से चली जाऊंगी। और मैंने टैक्सी की तरफ कदम बढ़ा दिए। और फिर मेरे दफ्तर आओगी ना? फिलिप ने चलते चलते कहा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, और मैंने उसकी तरफ मुड़कर बोली। उस वक्त रात के 10:30 बज रहे थे जब मैं टैक्सी के जरिए पहाड़गंज पहुंची और टैक्सी मैंने सड़क ही पर छोड़ दी थी और मैं अपने घर की तरफ बढ़ रही थी कि मुझे दूर ही से घर के सामने आदल की कार खड़ी नजर आई और आदल शायद मेरी तलाश में नाकाम होकर घर लौट आया था और अब वहां मेरा मुंतज़िर था और मैं तेज कदमी के साथ आगे बढ़कर अपने घर के दरवाजे तक पहुंच गई और कॉल बेल के बटन पर उंगली रख दी और जरा ही देर बाद दरवाज़ा खुल गया और दरवाज़ा दुलारी ने खोला था। पिंडर जी, बड़ी देर से आपकी राह देख रहे हैं मामला जी, दुलारी मुझे देखते ही बोली और उसका इशारा आदल की तरफ था और जिसे तंजीम के अरकान पिंडर जी कहते थे। हाँ, मैंने कार खड़ी कर देख ली थी और मैंने कहा और अंदर दाखिल हो गई। दलवारी दरवाज़ा बंद करने लगी और मैं आगे बढ़ गई और अपने कमरे की तरफ बढ़ते मैं ये सोच रही थी कि आदल से क्या कहूँगी। ज़ाहिर है कि वह मुझसे ये ज़रूर पूछता कि मैं कार से उतर कर कहाँ चली गई थी और यही सोचती हुई मैं अपने कमरे में पहुँच गई और आदल सामने ही कुर्सी पर बैठा हुआ था। शुक्र है कि तुम आ तो गई मामला, आदल ने मेरी तरफ देखते हुए तवील सांस लेकर कहा। और मैं तो खैर किसी तरह आ ही गई, लेकिन तुम कार लेकर कहाँ रफू चक्कर हो गए थे? मैंने उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई और मुझे तो खुद उस पुर इसरार वाक़े पर हैरत है। आदल बोला, जैसे ही तुम कार से उतरी कार खुद ब खुद तेजी से आगे बढ़ गई और फिर मैंने लाख चाहा कि कार रोक लूं, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हुआ और फुल ब्रेक लगाने के बावजूद कार तेज रफ्तारी से आगे बढ़ती रही। उसी तरह जब कार खिलाफे तवक्का चलते चलते अचानक रुक गई तो मैंने एक्सीलेटर पर लाख दबाव डाला मगर कार आगे नहीं बढ़ी और मेरे साथ ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। खासी दूर जाकर कार आप रुक गई थी और मैं वापस स्टेट गेस्ट हाउस की तरफ लौट कर आया और जिस जगह तुम कार से उतरी थी वहीं तुम्हें तलाश किया और तुम वहां मुझे नहीं मिली और फिर तुम्हारी तलाश में वो सारा इलाका मैंने छान मारा। उसके बाद मुझे बेमजबूरी पहाड़गंज लौट आया और तुम अगर मजीद कुछ देर ना आती तो मैं दोबारा तुम्हारी तलाश में निकल खड़ा होता। और ये बताओ कि तुम कार से क्यों उतर गई थी? और मैंने तुमसे पूछा भी था कि कहाँ जा रही हो, मगर अपने सवाल का जवाब सुनने के लिए वहां रुके नहीं थे। मैंने आहिस्ता से हंसकर कहा, वो तो मैं तुम्हें उसकी वजह बता ही चुका हूं, लेकिन तुमने वहां रुककर मेरा इंतजार क्यों नहीं किया? और मुझे ये इल्म नहीं था कि कार तुम्हारे काबू में नहीं रही। ज़ाहिर है कि मुझे ये बात भी पता भी कैसे चलती और मैं कुछ और ही समझी और मैंने सोचा कि तुम शायद वहां से अपने लिए किसी किस्म का खतरा महसूस करके चले गए और ऐसी सूरत में अब लौट कर नहीं आओगे। और मुझे ये खबर नहीं थी कि कार खुद ब खुद रुक गई है और मेरा ख्याल था कि खुद तुमने कार को रोका है और मैं करीब से उस इमारत को देख सकूं और मैं इसीलिए कार से उतरी। लेकिन जब तुम तेजी से कार आगे बढ़ाकर ले गए या यूं कहो कि कार खुद ब खुद आगे बढ़ गई तो मुझे भी खतरे का एहसास हुआ और मैंने किसी खाली टैक्सी की तलाश में इधर उधर नजरें दौड़ाई ताकि वापस घर आ सकूं और कोई खाली टैक्सी तो वहां नहीं मिल सकी। अलबत्ता
البتہ میرے انگریز شناسا مجھے وہاں کھڑے دیکھ کر اپنی کار روک لی اور وہ کلکتے سے دہلی تک میرا ہم سفر رہ چکا تھا۔ اس نے مجھے اپنے ساتھ کافی پینے کی دعوت دی جو میں نے قبول کر لی۔ پھر بھی تم نے واپسی میں خاصی دیر لگا دی، عادل نے کہا۔ ہاں بس باتوں میں دیر ہو گئی۔ عادل زیادہ دیر لگنے کے بارے میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ کہاں اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس میں اور پھر وہاں سے فرار ہونے میں جو وقت گزرا تھا وہ میں نے اس کا سرے سے کوئی ذکر ہی نہیں کیا تھا۔ خیر یہ بتاؤ معاملہ کہ تم اس عمارت کو دیکھ کر کیا اندازہ لگایا؟ اتنے سخت حفاظتی انتظامات کی موجودگی میں کیا وہاں داخلہ ممکن ہے؟ ہاں ممکن ہے، میں نے خلاف توقع جواب دیا۔ وہاں داخل بھی ہوا جا سکتا ہے اور بحفاظت نکلنا بھی ممکن ہے۔ وہ کیسے؟ عادل حیران سا ہو کر کہنے لگا۔ عمارت کے عقبی حصے سے میں نے بتایا کہ یہ مشکل ضرور ہے مگر ناممکن نہیں۔ جہاں تک میرے علم میں ہے کہ عمارت کی عقبی دیوار بالکل سپاٹ ہے اور اس پر کسی طرح چڑھا جا سکتا ہے کمند ڈال کر۔ شرط صرف یہ ہے کہ عمارت کی کوئی کھڑکی کھلی ہو اور ایسا رات کے وقت ہی ممکن ہے۔ اور سرچ لائٹ سے کس طرح بچا جائے گا؟ کم سے کم بھی 10 منٹ کا وقفہ تو ہوتا ہے نا، اور یہ وقت سڑک سے عمارت کے درمیان واقع ہونے سے میدان کو عبور کرنے کے بعد کمند ڈال کر اوپر چڑھنے کے لیے کافی ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کے لیے حیرت انگیز تیزی اور مہارت کا ثبوت دینا پڑے گا، اور یہ سب کچھ میں نے اس عمارت سے نکل کر کے تجربے کی بنیاد پر کہا ہے۔ حیرت معاملہ کہ تم نے اس عمارت کا ایک ہی مرتبہ جائزہ لے کر اندر داخل ہونے کا راستہ بھی ڈھونڈ لیا، اور عادل کا لہجہ ستائشی تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمارت کے حفاظتی اقدامات میں عقبی سمت کو زیادہ اہمیت نہیں دی گئی اور زور زام سامنے ہی کی رخ پر رکھا گیا ہے، اور چھت کے علاوہ اگر نیچے میدان میں بھی مسئلہ محافظت متعین ہوتے ہیں تو پھر میری تجویز قابل عمل نہ ہوتی۔ بہرحال اس سلسلے میں سالار اکبر سے بات کروں گی، اور مزید کچھ دیر اسی موضوع گفتگو کے بعد عادل نے رخصت ہونے کی اجازت چاہی، اور میں اس کے ساتھ مزید چائے کے لیے بھی پوچھا تھا مگر عادل نے انکار کر دیا تھا۔ عادل چلا گیا تو میں نے کمرے کا دروازہ بند کر کے کپڑے تبدیل کیے اور پھر نیلا ہلکا بلب جلا کر سونے کے لیے بستر پر لیٹ گئی، اور میرے لیے یہ بات خوش آئند تھی کہ سیان کا سراغ مل گیا تھا، اور ابھی اسی کو بیگام تک پہنچانا میرے لیے پہلی ترجیح تھی۔ پہاڑوں سے اتر کر میدانوں کا رخ کرنے کا بنیادی سبب بھی تو آخر یہی تھا، اور سونے سے پہلے میں اسی سلسلے میں غور و فکر کرتی رہی، اور میری آنکھوں میں نیند نے اپنے جال بننے شروع کیے ہی تھے کہ میں چونک اٹھی۔ مجھے اپنی مسحری کے ارد گرد نارنجی شعاؤں کا ایک حصار دکھائی دیا جو چند لمحے قائم رہ کر غائب ہو گیا، اور اس سے پہلے میں نے 1-2 بار اپنے گرد دودیا حفاظتی حصار محیط ہوتے دیکھا تھا، اور یہ پہلا موقع تھا کہ حصار کا رنگ بدل گیا تھا، اور حصار کا میرے گرد قائم ہونا اس طرف اشارہ کر رہا تھا کہ مجھے کوئی خطرہ درپیش ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ خطرہ میرے دشمنوں کی طرف سے ہی ممکن ہے، اور مجھے میرے دشمنوں کے شیطانی حملے سے بچانے کی خاطر یقیناً یہ حفاظتی بندوبست عظیم محمد کی نیک روح نے کیا ہوگا۔ اور میں نے حفاظتی حصار کی تبدیلی پر غور کیا تو اس کی وجہ بھی سامنے آ گئی۔ چمپا ایک مرتبہ میرے گرد قائم دودیا حصار کو توڑ چکی تھی۔ خطرے کا احساس ہونے کے بعد اب میرے لیے سو جانا ممکن نہیں رہا، اور چمپا کی طرف سے میں ہی ممکنہ شیطانی حملے کا انتظار کرنے لگی، اور کافی دیر تک جب میرا انتظار بے سود رہا تو دوبارہ میری پلکیں نیند سے بوجھل ہونے لگی، اور نارنجی رنگ کے شعاؤں کے اس نئے حصار نے مجھے بڑی حد تک مطمئن کر دیا، اور میرے ذہن پر غنودگی چھائی ہوئی تھی کہ اچانک مجھے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا، اور میں نے گھبرا کر آنکھیں کھول دیں۔ مسحری سے کچھ ہی فاصلے پر مجھے لانتی چمپا اپنے مخصوص ریشمی لبادے میں کھڑی نظر آئی، اور اس کے دونوں ہاتھ میری طرف اٹھے ہوئے تھے اور ہونٹ تیزی سے حرکت کرنے لگے، اور وہ کسی شیطانی عمل میں مصروف تھی، اور خطرے کا اندیشہ درستی ثابت ہوا تھا۔ اور پھر میں نے نارنجی شعاؤں کو چمپا کی طرف لپکتے دیکھا، اور جیسے ہی شعائیں اس کے جسم سے ٹکرائیں وہ چیخ اٹھی، اور اس کے چیختے ہی میرا دم گھٹنا بند ہو گیا۔ اس کا سبب شاید ادھورا رہ جانے والا شیطانی علم تھا، اور نارنجی شعائیں غائب ہو چکی تھیں، لیکن چمپا اب تک بری طرح چیخے جا رہی تھی، اور پھر میں نے اسے زمین پر گر کر تڑپتے دیکھا، اور وہ اس طرح تڑپ رہی تھی جیسے شدید تکلیف و اذیت میں مبتلا ہو۔ سایتا کرے بڑے مہاراج، لانتی چمپا اپنی مدد کے لیے بڑے مہاراج
चंद्र मोहन को पुकारने लगी और उससे मैंने यही नतीजा अखज़ किया कि चंपा जिस इज़ाब में गिरफ्तार हो चुकी थी उससे बचना खुद उसके बस में नहीं था। अब मैं अपनी मसहरी पर उठकर बैठ चुकी थी और फर्श पर गिरकर तड़पती हुई चंपा की हालत का जायजा ले रही थी। और अभी चंद ही लम्हे गुजरे होंगे, कमरे में गाढ़ा गाढ़ा सा धुआं बनने लगा और उसके साथ ही मैंने ठंडक सी महसूस की और धुएं की वजह से कमरे में अंधेरा सा फैल गया और चंपा की चीखें भी रुक चुकी थीं। अंधेरे ने उसके जिस्म को भी छुपा लिया और मैं अब उसे देखने से कासर थी। अब तक चंपा के शैतानी हमलों से किसी न किसी तरह मेरा दिफा किया जाता रहा था, लेकिन ये पहला मौका था कि उसे मुझ पर हमला करने और मेरे करीब आने की सजा भी मिली। कमरे से जब धुआं छटा और चीजें मुझे वाज़ेह नजर आने लगी तो चंपा का जिस्म गायब हो चुका था और ठंडक का एहसास अब नहीं रहा था। मैं दोबारा लेटने ही वाले थी कि कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई और उसी लम्बे नारंगी शुआओं का नमूदार हुआ और फिर उसने मुझे फिजा में बिखरते देखा। शायद अब उसकी जरूरत नहीं रही थी और मैंने उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए बुलंद आवाज में पूछा, कौन है? मैं दुलारी हूँ मामला जी। बाहर से आवाज आई, दरवाज़ा खोलिए। और मैंने तेजी से आगे बढ़कर दरवाज़ा खोल दिया को दुलारी के हाथ में मुझे रिवाल्वर नजर आया। क्या हुआ दुलारी? मैंने उससे पूछा। आपके कमरे से मुझे चीखों की आवाज़ सुनाई दी मामला जी। और आप ठीक है, वो चीख किसकी थी? लेकिन मुझे तो किसी की चीखें सुनाई नहीं दी और मसरत के तहत मैं बोली और मैं समझ चुकी थी कि यकीनन उसने चंपा की चीखें सुनी होंगी और मैं तो गहरी नींद सो रही थी और तुमने दरवाजे पर दस्तक दी और मेरी आंख खुली। हैरत है कि आप सोती रही और आपने कुछ नहीं सुना। और दुलारी के चेहरे पर मौजूद तासरात उसके अल्फाज का साथ दे रहे थे। मैं ठीक हूँ, तुम भी जाकर सो जाओ, मैंने नरमी से कहा। और वह हैरान सी वापस अपने कमरे की तरफ चली गई और उसके बाद मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद करने की ज़रूरत नहीं समझी। और घर में दुलारी के सिवा और था भी कौन, और मैंने दरवाजे को सिर्फ भेज दिया। और सलीम ने शायद आदल की तरफ से पैगाम मिलने के बाद मेरे घर का रुख नहीं किया, और या वो आया भी होगा तो घर की निगरानी और हिफाजत पर मामूर अफराद ने उसे आगे नहीं बढ़ने दिया। और आज रात चंपा खुद बराह रात मुझ पर हमला करने वाली थी, इसीलिए सलीम को आलाकार नहीं बनाया होगा। और बहरहाल मुझे अब सलीम की तरफ से खतरा नहीं रहा था। उस रात का बकिया हिस्सा सुकून से गुजर गया और मैं आराम से सो गई। और दूसरे दिन जब मैं नाश्ते करने के बाद चाय पी रही थी तो समीउल्लाह के जरिए मुझे सालार अकबर का पैगाम मिला। पैगाम के मुताबिक सालार अकबर मुझसे शाम को 5 बजे मिलने की बजाय दोपहर 2 बजे मेरे ही घर पर मिलने आ रहा था। और इस तब्दीली के वक़्त की वजह से मैं यही समझी कि शायद शाम को उसे कोई मसरूफियत होगी और समीउल्लाह पैगाम देकर चला गया। तवक्का के ऐन मुताबिक ठीक 2 बजे सालार अकबर आ गया और दुलारी उसे मेरे कमरे में ले आई। दुलारी कमरे से चली गई तो सालार अकबर ने अपनी जेब से एक लिफाफा निकालकर मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, विलियम राइट और रॉबर्ट हिम के दफ्तरों नीज कोठियों के पते हासिल कर लिए गए हैं और जो इस इलाके में मौजूद हैं उन दोनों के मुतल्लक बकिया ज़रूरी मालूमात अभी हासिल की जा रही हैं। और दोनों ही के दफातर ऐसे ममनुआ इलाकों में हैं जहाँ किसी आम आदमी का दाखिला मुमकिन नहीं, और जब तक उसके पास मुतल्लका हकाम की तरफ से जारी करदा खसूसी इजाज़तनामा ना हो तो दोनों की सकूनत अलबत्ता ऐसे किसी इलाके में नहीं। और मैंने लिफाफा खोल कर एक कागज़ पर दर्ज पते पढ़े और फिर कागज़ को दोबारा लिफाफे में बंद करके मेज़ पर रख दिया। और उन पत्तों की फराहमी पर मैंने सालार अकबर का शुक्रिया अदा किया। कल रात जो लोग विलियम की निगरानी कर रहे थे उनसे मुझे एक और हैरान कुन इतला भी मिली। और फिर इससे पहले क्या सालार अकबर मजीद कुछ कहता, मैं बोल उठी, और वह हैरान कुन इतला गालबन मेरे ही कमरे में होगी और मुझे विलियम के साथ देखा गया है। जी हाँ, सालार अकबर ने तस्दीक की और फिर मालूम किया। आप उस वक़्त उस तक कहाँ किस तरह पहुँच गई? और विलियम जैसे किसी शख्स के तक पहुँच जाना बहरहाल कोई आसान बात नहीं। और विलियम से मेरी मुलाकात महज एक इत्तफाक थी। और फिर सालार अकबर को फ़िलिप के बारे में बताया और उसी ने विलियम राइट से मेरी मुलाकात कराई। और बिकौल आपके खुद फ़िलिप भी वजारत दाखिला में एडिशनल सेक्रेटरी है और फिर तो वो अभी आपके लिए कारआमद साबित हो सकता है। सालार अकबर ने इज़हार ख्याल किया। मुमकिन है कि आपका ख्याल दुरुस्त हो, फिर भी यकीनी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता।
सीक्रेट सर्विस बहरहाल एक अलग इदारा है और ये ज़रूरी नहीं कि वह अपने इक़दामात से वज़ारत दाखिला को बाखबर रखता हो, और बाद मामलात इंतहाई राजदारी के भी तो हामिल होते हैं। लेकिन वज़ारत दाखिला किसी भी मामले में सीक्रेट सर्विस से इस्तफसार करने का हक रखती है। खैर, ये अलग बहस है। मालूम हुआ है कि कल पिंडर जी के साथ आप स्टेट गेस्ट हाउस का जायज़ा लेने भी गई थी, और आपका ख्याल है कि वहाँ से अकबी सिमत से दाखिला होना मुश्किल नहीं। जी हाँ, मैं ऐसा ही समझती हूँ। फिर भी मैं यही मशवरा दूंगा मामला कि यह ख़तरा मोल ना लिया जाए, और अगर वहाँ दाखिल हुए बगैर मकसद पूरा हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। आप ठीक कहते हैं, बिला ज़रूरत ख़तरा मोल नहीं लेना चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल है कि आखिरकार ये मकसद ख़तरा तो उठाना ही पड़ेगा, और विलियम के मेहमान को भी अच्छी तरह जानती हूँ, और तसल्ली बख्श हिफाजती इंतजामात के बगैर स्टेट गेस्ट हाउस से बाहर कदम नहीं रखेगा। और उसका नाम भी मालूम हो गया है। ज़ाहिर है कि तस्दीक आप ही कर सकती हैं। और फिर सलार अकबर ने मेरे दुश्मन का नाम बताया। जी हाँ, उसका नाम सैयार है। मैंने तस्दीक कर दी, और सलार अकबर का अमला यकीनन बड़ी जाँफशानी से तेज़ रफ्तारी का सबूत दे रहा था, और इतने कम वक्त में उन लोगों ने खासी मालूमात हासिल कर ली थी। और ये सोचते मैंने सलार अकबर से सवाल किया, सैयार के मुतल्लिक ये मालूम करने के लिए कि वो किस वक्त गेस्ट हाउस से निकलता भी है या नहीं, आपको कितना वक्त चाहिए? कम से कम 3 दिन तो लग जाएंगे, और अगर उससे पहले मालूमात हासिल हो गई तो ज़ाहिर है कि आपको मतला कर दिया जाएगा। ठीक है, मैं 3 दिन इंतज़ार किए लेती हूँ, और उसी के बाद आखिरी कदम उठाने के बारे में फ़ैसला करूँगी। और आखिरी कदम से आपकी मुराद स्टेट गेस्ट हाउस में दाखिल होने से है? जी, इस सिलसिले में मुझे आपके तावन चाहिए होगा, और स्टेट गेस्ट हाउस में दाखिले की मुझे कम से कम 2 मसला अरकान की ज़रूरत पड़ेगी, और उनमें से एक का इंतखाब मैं कर चुकी हूँ, और दूसरे रुकन का इंतखाब का फ़ैसला आप पर छोड़ती हूँ। और आपने शायद पिंडर जी का इंतखाब किया है, और दूसरा रुकन खुद मैं भी हो सकता हूँ, लेकिन क्या ये सिर्फ 2 अफराद काफ़ी होंगे मामला? और अभी मैंने इस पर ज़्यादा गौर नहीं किया, लेकिन भीड़ जितनी कम हो उतना ही अच्छा है, और कम अफराद हो तो तेज़ी से हरकत की जा सकती है। और मैं भी इस पर गौर करूँगा, और कोई नई बात जहन में आई तो आपको बताऊँगा। अच्छा, अब इजाज़त। और कल भी इसी वक्त दोपहर को तशरीफ़ लाएंगे, या शाम 5 बजे? वैसे तो शाम ही होने का इरादा है, लेकिन वक्त तब्दील हुआ तो आपको आज ही की तरह मतला कर दिया जाएगा। हाँ, आपसे एक बात और दरियाफ़त करना थी। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, आप आइंदा भी हमसे मिलती रहेंगी। क्या मेरा अंदाज़ा दुरुस्त है? कतई दुरुस्त है। कल रात उसी 5 स्टार होटल में विलियम से मेरी मुलाकात होगी, और जहाँ तक उसके साथ विलियम की निगरानी करने वाले आपके आदमी ने देखा था, मैंने बता दिया। और वैसे तो आप खुद भी बहुत ज़हीन और बाशऊर है मामला, फिर भी इन गैर मुल्कियों की तरफ से चौकन्ना रहिएगा। और फिर सलार अकबर के जाने के बाद मैं अपने कमरे में वापस लौट आई, और मज़ीद कुछ देर आराम किया, और फिर 4 बजे के करीब उठ गई। और फिर शाम को मैं शहजाद के घर पहुंच गई, और शहजाद को मैंने एक साइड पे बुलाकर पूछा, क्या तुमने शाबू का अड्डा देखा है? जी हाँ, मगर क्या वहाँ चलेंगी? वो कुछ घबरा सा गया। क्यों, क्या हर्ज है वहाँ चलने में? और क्या तुम ये चाहते हो कि वह यहाँ आकर कोई हंगामा खड़ा करे? और फरहान मुझे बता रहा था कि वह तुम्हें पूछने एक बार भी आ चुका है। और शहजाद के चेहरे से उलझन का इज़हार होने लगा, और समझ में नहीं आ रहा खातून कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। और जब आदमी की समझ में कुछ ना आ रहा हो तो दूसरे की समझ पर भरोसा कर लेना चाहिए। चलो उठो और मुझे शाबू के अड्डे पर ले चलो। सोच लीजिए आप भी खातून, वहाँ जाना मेरे ख्याल में हरगिज़ मुनासिब नहीं, और वहाँ यूं भी वो अकेला नहीं होगा, और उसके भी चेले चांटे होंगे, और यहाँ तो फिर भी वो अकेला आया था। सोच लिया बस तुम उठो, मैं नहीं चाहती कि वो यहाँ आए। और ये कहते ही मैं उठकर खड़ी हुई, और मजबूरन शहजाद को भी मेरा साथ देना पड़ा। शहजाद का के साथ मैं नशस्तगाह से बाहर निकल आई। घर से निकलकर हम दोनों तराह बैरम खान तक ही पहुंचे थे कि मैंने शहजाद को ठटक कर रुकते देखा। तुम रुक क्यों गए, क्या हुआ? मैंने शहजाद की तरफ मुड़कर देखा। वो खातून शाबू इधर ही आ रहा है। शहजाद एक तरफ देखकर हकलाया। मैंने शहजाद की निगाहों का ताक़ुब किया
तो मुझे भी एक जन्म से लहीम शहीम शाबू नजर आ गया और वह तेज तेज कदम उठाता हुआ वाकई हमारे ही तरफ आ रहा था। लगता है कि उसने भी हमें देख लिया। शहजाद के घर में खासी दूर निकल आई थी। अब हमें बड़े बाजार में थे और मुझे तवक्का नहीं थी कि शाबू बड़े बाजार में भिड़ने की कोशिश करेगा और मैं भी अब रुक चुकी थी। शाबू और करीब आ गया तो मैंने शहजाद से कहा कि तुम जरा पीछे हट जाओ, लो ये मेरा पर्स पकड़ लो, और मैंने अपना पर्स उसे थमा दिया। मैंने शाबू के चेहरे पर तनाव सा देखा और उसका चेहरा तले मुक्के की तरह मालूम हो रहा था और मेरे बिल्कुल सामने आकर रुक गया और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मुझे घूरने लगा। और फिर वो किसी सांप की तरह फुंकारा। आखिर उसने तुझे अपनी जान बचाने के लिए बुला ही लिया ताकि मैं उस पर हाथ पैर ना तोड़ सकूं, और उसका इशारा शहजाद की तरफ था। और फिर अचानक उसने मेरा दायां बाँव पकड़ लिया और घुराया, चल मेरे साथ अड्डे पर, क्यों यही बड़े बाजार में फैसला हो जाए तो क्या बुरा है। और मैं पुरस्कून आवाज में बोली और उसी के साथ झटका देकर अपना बाजू उसकी गिरफ्त से छुड़ा लिया। तू शायद समझ रही है कि यहाँ बाजार में तुझे लोग बचा लेंगे। सुन, अगर मैं तुझे यहाँ चीर कर भी डाल दूँ तो किसी की मजाल नहीं कि एक लफ्ज़ भी जुबान से निकाल सके, और मेरा नाम शाबू है, शाबू, और ये सारा इलाका मुझे जानता है। और तेरे लिए यही बेहतर है कि चुपचाप मेरे साथ चली चल, वरना मैं तुझे उठाकर भी ले जा सकता हूँ। मेरे और शाबू के दरमियान तकरार देखकर लोग जमा होने लगे। चलो बेकाम अपना काम करो, शाबू ने लोगों को डांट पिलाया, और यहाँ तुम्हारी अम्मा का नहीं नाच रही जो तमाशा देखने आ गए हो। और डांट खाकर लोग छटने लगे थे कि मैंने उन्हें बुलंद आवाज में मुखातब किया, ठहर जाओ, इस गैडर की भपकी में आने की जरूरत नहीं। अब ये तुम सब लोगों को नाच कर अपना तमाशा दिखाएगा। और ये कहते ही मैं तेजी से पीछे हटी और फिर शाबू के फूले हुए रुखसार पर इतनी जोर से मेरा उल्टा हाथ पड़ा कि उसका चेहरा दूसरी तरफ घूम गया। और तेरी तो, शाबू मुझे गाली देता हुआ मेरी तरफ झपटा और मुझ पर हमला करने या ضرب लगाने की हसरत उसकी दिल में ही रह गई, और मैंने उसकी दोनों टांगों के दरमियान अपनी एक टांग फिंसाकर उसे गिरा दिया। शाबाश, उठ जा मेरे मट्टी के शेर, मैंने उसे चिढ़ाया। और भारी का जिस्म होने के बावजूद वो उछल कर फौरन खड़ा हो गया और लोगों ने अब हमारे गिर्द हल्का बना लिया और मेरे रोकने पर जाते जाते ठहर गए थे और अब ये हैरत अंगेज तमाशा देख रहे थे। यकीनन उन्होंने आज से पहले एक औरत के हाथों यूं किसी बदमाश मर्द को पीटते हुए ना देखा होगा। और शाबू मुझसे कुछ फासले पर खड़ा हुआ शायद मेरे ऊपर छलांग लगाने वाला था और मैं पूरी तरह चौकन्ना थी। जैसे ही वो उड़ता हुआ सा आया मेरी तरफ और मैं अपनी दाईं टांग आगे बढ़ा दी और मेरे पैर की ज़रब उसके जबड़े पर पड़ी और वह चीखता हुआ पीछे हट गया। और मुमकिन है कि वो दोबारा ज़मीन चाट जाता, मगर उसने खुद को संभाल लिया और गिरते गिरते बचा। इतना काफ़ी है शाबू कि अभी और जलील होने की तमन्ना है, मैंने उसे मुखातब किया, और मैं तुझे यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाने दूंगा। और वो ये कहते हुए एक बार फिर मुझ पर झपटा और मैंने बाईं तरफ हट कर उसके पहलू पर कोहनी मारी और उछल कर पीछे हट गई और ज़रब खाकर वो दोहरा हो गया और उसी लम्हे लपक कर मैंने उसकी पिंडली पर ठोकर मारी और उसके मुंह से चीख निकल गई और फिर वो अपने पैरों पर खड़ा न रह सका। शाबू, मैं तेरे अड्डे पर चलकर तेरा इंतजार कर रही थी, जब तू चलने के काबिल हो जाए तो वहां आ जाना, और मेरा ख्याल है कि बकिया तमाशा तेरे अड्डे पर हो और तो ज्यादा अच्छा है। और यहाँ ख्वाम खा लोगों का रास्ता खोटा कर रहा है। और मैं ये कहकर शहजाद की तरफ मुड़ी और बोली, चलो खातून अब रहने दे, ज्यादा बात ना बढ़ाएं। शहजाद खौफजदा सा दिखाई दिया। डरो मत, मैं इस तरह बात नहीं बढ़ा रही बल्कि खत्म करना चाहती हूँ। तुम चलो तो सही मेरे साथ। और मैंने धीमी आवाज में शहजाद से कहा, चलिए। शहजाद मुर्दा सी आवाज में बोला और फिर मेरे साथ चलने लगा। लोग मुझे देखकर इधर उधर हो गए थे और उन्होंने मुझे रास्ता दे दिया और वो मेरे ही बारे में चैमगोइयां कर रहे थे। ये है शेर की बच्ची, कोई कह रहा था। और देखा नहीं, शाबू जैसे बदमाश की मीनिंग निकाल दी। और दूसरा शख्स बोला, अब और इस अड्डे पर जा रही है, इसे कहती हैं बहादुरी, किसी और ने कहा। और मैं ये सारे तबसरे सुनते हुए लोगों के दरमियान से गुजर कर आगे बढ़ गई। शहजाद मेरे साथ साथ था और मेरा हैंड पर्स अब तक उसके पास था। मैंने हाथ बढ़ाकर उसे पर्स ले लिया और शहजाद एक मर्तबा फिर मुझसे वापस चलने के लिए कहने लगा। तो मैंने उसे समझाया कि अगर बात यहीं ख़त्म हो गई तो तुम्हारा दुश्मन हो जाएगा और फिर मौका देख कर वो तुम्हें कोई भी नुकसान पहुँचा सकता है, जो ज़ाहिर है मैं नहीं चाहती। तो फिर खातून बता, बात खत्म कैसे होगी? इस तरह तो बात और बढ़ती जाएगी। अड्डे पर तो
اس کے اور ساتھی بھی ہوں گے تو کیا ہوا، یہ تو اور بھی اچھا ہے، اور اس کے دل میں کوئی حسرت نہیں رہے گی۔ تم بس دیکھتے جاؤ، اگر زیادہ ڈر لگ رہا ہے تو مجھے اس کا اڈا دکھا کر تم گھر واپس چلے جاؤ۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے خاتون؟ وہ دیوتاؤں، میں آپ کو اکیلا چھوڑ کر چلا جاؤں؟ اور شہزاد کی بات سن کر میں دل ہی دل میں ہنسی، اور اس کا میرے ساتھ ہونا نہ ہونا برابر ہی تھا، مگر میں نے زبان سے کچھ نہیں کہا، اور میں کچھ کہتی تو وہ خواہ مخواہ شرمندہ ہوتا۔ اور میں شہزاد کے ساتھ کوچہ چیلان میں شابو کے اڈے پر پہنچ گئی، اور اڈے کا بڑا سا محرابی پھاٹک بند تھا، اور پھاٹک کے اندر ایک چھوٹا سا دروازہ اور بھی نظر آیا۔ دستک دو، میں نے شہزاد سے کہا، اور شہزاد نے میرے کہنے پر دستک دی تو ذیلی دروازہ کھول کر لمبے سے منہ والے ایک شخص نے باہر جھانک کر پوچھا، کیا بات ہے؟ اور اس کے لہجے میں اکڑ پن تھا۔ ہمیں شابو نے یہاں بھیجا ہے۔ شہزاد کے کچھ کہنے سے پہلے ہی میں بول اٹھی، تمہیں بھیجا ہے؟ اور لمبے منہ والا حیرت سے بولا، مگر کس لیے؟ ہمیں کیا معلوم، ہم سے جو کہا گیا ہے اسی پر عمل کر رہے ہیں، اور تم ہمیں اندر آنے دو۔ اور خود استاد شابو کہاں ہے؟ وہ شخص مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا، وہ تمہارے ساتھ کیوں نہیں آئے؟ تم ادھر ہٹو۔ میں نے شہزاد کو ایک طرف کر دیا اور اپنا ہینڈ پرس بھی پکڑا دیا، اور پھر اس سے پہلے کہ لمبے منہ والا کچھ سمجھ پاتا میرا کیا ارادہ ہے، میں اسے دھکا دے کر اندر داخل ہو گئی۔ ارے تو ہاتھا پائی پر اتر آئی ہے، بتاتا ہوں تجھے میں ابھی۔ اور مجھے تو پہلے ہی تجھ پر شک ہو رہا تھا کہ یہ کہتے لمبے منہ والے شخص نے اپنے کرتے کی جیب میں ہاتھ ڈال کر چاقو نکال لیا۔ زیادہ بہادری نہ دکھا اور چاقو جیب میں رکھ لے، اور میں تیرے ہر اجے بجے پر ہاتھ اٹھانا اپنی توہین سمجھتی ہوں۔ ابھی تو آپے سے باہر ہوئی جا رہی ہے۔ اس نے کھٹکے دار چاقو کھول لیا، اور ابھی تیری آنتیں باہر کیے دیتا ہوں۔ اور میں سمجھ گئی کہ وہ اس طرح نہیں مانے گا، اور میں نے اس لیے آگے بڑھ کر اس کی کلائی پر لات ماری، اور وہ چیخا اور چاقو اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گرا، اور میں اس پر جھپٹی، اور اس بار میرے ہاتھ کی ضرب اس کی کمپٹی پر پڑی، اور وہ لہرا کر زمین پر آ رہا۔ ابے ننہال، کیا ہو گیا ہے؟ کیوں چیخ رہا ہے؟ اندر سے کسی کی بھاری آواز آئی، اور ننھے غالباً اسی لمبے منہ والے کا نام تھا جو ہوش و حواس سے غافل ہو چکا تھا۔ اور میں دوباری میں کھڑی تھی، اور شہزاد ابھی تک باہر ہی کھڑا تھا، اور میں نے اسے آواز دی، اندر آ جاؤ شہزاد، راستہ صاف ہو چکا ہے۔ اور یہ کہتے ہی میں پلٹی، کیونکہ اپنے عقب میں مجھے بھاری قدموں کی چاپ سنائی دی، اور میری طرف آنے والا گٹھیلے جسم کا ایک شخص تھا، اور اس کا ایک کان ٹوٹا ہوا تھا اور کاندھے پر رومال پڑا تھا۔ اسی دوران میں شہزاد اندر آ گیا۔ یہ ننھے کو کیا ہوا؟ نواز نے میرے قریب آ کر حیرت سے پوچھا۔ ہونا کیا تھا، بس ایک ہی ہاتھ میں غش کھا گیا۔ منع کیا تھا میں نے کہ زیادہ بہادری نہ دکھا، مگر مانا ہی نہیں، اور کہنے لگا ابھی آنتیں باہر نکال دوں گا، اور میرا لہجہ بالکل ایسا تھا جیسے اس شخص سے لمبے منہ والے کی شکایت مقصود ہو۔ کیا مطلب؟ تو نے مارا ہے اس ننھے کو؟ اور اس شخص نے چونک کر مجھے دیکھا۔ ہاں، میں نے ہی مارا ہے، میں نے پرسکون آواز میں جواب دیا۔ اگر میں اسے نہ مارتی تو یہ مجھے چاقو مار دیتا، اور وہ دیکھ لو ادھر چاقو پڑا ہے اس کا۔